and keen interest Bhagavatam. Also, my respectful salutation to the Vaishnav scholars who have been tenaciously delivering talks on the Bhagavatam Delhi. So, when I visited Pune University during 1980s or so, I saw a verse of the Gita Ji engraved in bold letters at the top of the administrative block of Pune University. The verse reads, Nahi jnana satrusang pavitram vidyate, taswayang yogasanghidha kalena atmanipindati. At dawn I read there, I raised my head and attentively read it again and again. Repeated horripilations pervaded my whole body. Modern scholars say the word Gyan in Sanskrit is not knowledge in English. They say Gyan is the combination of knowledge, wisdom, vision, and insight. These four words constitute Gyan. They say, the scholars, modern scholars say so. We know Gyan is spiritual knowledge, and Vigyan means a direct experience or relation on that of that knowledge. Our scholars always seek or search after the deeper connotation of every word of existential importance while reading various treatises on the Vedanta. I came across Adiguru Shankaracharya's eye-catching address to the seekers of supreme metaphysical principle, the Param Brahman. After enunciating these Vedantic doctrines, that non-dualism, the Adiguru says, this is the knowledge of God, the knowledge of Brahman, the knowledge that destroys the bonds of ignorance and leads to the supreme goal of freedom. Haripriya Prabhuji, during his discourses, elaborately dealt with the Gyan aspect of bhakti or devotion. He cited the verses from the Gita, explained the commandments on pure devotion, Jnana Karma Janavratam of the Vaishnava Acharya like Rupa Goswami, etc. Also, the great Bhagavad verse in the Hymen of Brahma reads, Jnane Prayasa Mudapasya Namanta Eva जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम तनुवाक मनोभीर्जे प्रायसो जित जितोपि असित स्त्रीलोक्याम. Haripriya ji, his analysis on the score remained considerably obscured for us. So it would be gratifying for us if anybody among the scholars conversant with Vedanta and connected with the Satra or otherwise could find out the samanvaya or consistency or agreement on the comparison of non-dualism of Kevala Advaita doctrine with the dualism of Vaishnava philosophy. The Dvaita concept of the Gita may be taken into the purview of comparison. So where lies the non-dualistic feature or features in the dualistic Achintya Bhedabhed theory of the Vaishnava philosophy? And what brand of non-dualistic thought or thoughts the Vaishnava philosophers expound? Their dualistic prominent philosophy. These points may kindly be addressed in the subsequent discussions at the convenience of the acharyas or by some other scholars at their own convenience. This is my request. So, numerous are the colleges and the universities around us. Accordingly, lecturers, professors are so many. They are no doubt teachers educating the students on multiple streams of academic interest. But the scholars propagating the knowledge on God, devotion, divine love are the true benefactors of mankind. It is not so easy to talk on spiritual topic, especially on the Sanskrit Bhagavatam. Delhi. They teach how to love God and His creation, and in the process they teach the people to make their lives worth living. So they are the most powerful people in the universe. We are really fortunate enough to have the association of these scholars, Kesha Sadhu, these sadhus, Kesha Sadhu, Tanu Bak Manobhi Sadhu, sadhus in body, mind, and words. It is a rare opportunity for us to have the company of true mahats. Mahantaste samachittaha prasanta vimanyava srudha sadhavoji. They are the liberated souls like Acharya Narottam ji, Acharya Hare Krishna ji, Acharya Jayakant ji, Acharya Kaliprasad ji, Acharya Nanda ji, Acharya Upadhyaya ji.
And Abhinendraji and some other scholars whose names I don't remember, they have been rendering great service as spiritual teachers, educators of the people at large. We are indebted to them for such service. The lifespan of the teachers is these teachers is greatly elongated, what I feel, and eventually the Lord is condescended by their devotional service to bestow the ultimate end of devotional life, that is the rarest prema to them, no doubt. Last evening, we were listening to the vivid accounts of Yudhishthir Maharaj's itinerary to Kurukshetra, Vinasanam, where Bhishmadev was lying in a sleeping posture on his bed of arrows, as if a god fallen from heaven. Its purpose was to know about the rules of right conduct or dharma from Bhishmadev, rules for the king and rules for liberation, etc. Knowing that Lord Krishna was leading the party, many known and unknown rishis accompanied them to the destination, but Vyasadeva has specifically pronounced the names of the Mahabhagavatas and great rishis in order to lend prominence to the devotional persona of Bhishmadev. Acharya Narottam Prabhuji also explained the epithets Brahmarshi, Devarshi, and Rajarshi also in a more defining way by citing the verses from Dharma Shastra. So Yudhishthira Maharaj was obsessed with the languor meaning glani, that he had incurred sin by killing numerous people in the war. Thus he was distressed by an uneasy conscience due to the fear of having brought about great misery to his people. Lord Krishna tried to assuage the anguish so caused to Yudhishthira Maharaj. When Lord Krishna's words could not dispel the mental agony of Yudhishthira Maharaj, it was decided by the rishis and well-wishers that they should approach the unknowing enlightened Bhishmadev on the assurance that Bhishmadev must remove the mental agony of Yudhishthira Maharaj. And Lord Krishna also agreed to the proposal. The reason was that Lord Krishna was quite instrumental in creating the anguish in the mind of Yudhishthira Maharaj. Why? Bhishmadev was his staunch devotee. Such a great soul was lying on the bed of arrows, suffering unbearable pain, and was waiting for the auspicious moment, that is Uttarayan, to leave his body. His desire was that he would leave his body looking at the lotus feet of Lord Krishna. Krishna intended to reveal himself before his devotee and to show to the world that his own teachings failed to remove the distress of the district, whereas the teachings of his devotee brought about change in Yudhishthira's mind. In order to enhance the glories of his devotees, Lord Krishna was quite instrumental to lead all of them to Bhishmadev. Bhishma paid his respect to all the rishis and paid his homage to Lord Krishna by mentally worshipping him. So now I request Acharya Narottam Prabhuji to start his discussion from the verse that reads Pandu Putra Anupasinan Prasaya Prema Sangatan Abhya Chastanuraga Sreir Andhi Bhutana Chakshusa. So, Venerable Narottam Prabhuji is requested to kindly start his discourses as usual today. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sriyuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanvitangscha He Krishna Karuna Sindho
दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त भक्तजनों, वैष्णवजनों, संतजनों, सुधीजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु संतजनों के, भक्तजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना प्रणाम, विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबकी सहयोग, कृपा, आशीर्वाद से भगवान की दिव्य कथाओं को हम लोग कह सुन पा रहे हैं, इसके लिए सब समय हम लोग आप लोगों के चरणों में कृतज्ञ हैं। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कल की कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी वहाँ से भगवान की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे हमारे हितैषी, हमारे शुभेच्छुक पंडा बाबू ने बताया, आज भगवान का अत्यंत शुभ आविर्भाव दिन है। भारतवर्ष में बहुत्र आज भगवान का जन्मोत्सव पालन किया जा रहा है और जो वैष्णव लोग हैं वे लोग कल पालन करेंगे। बहुत अच्छा है भगवान का जन्मोत्सव 2 दिन पालन हो तो सभी जगह उत्सव ही उत्सव बना रहता है। और कुंती महारानी जैसे कह रही थी कि भगवान का जो आविर्भाव इस संसार में हुआ है, भगवान जो इस धराधाम में आविर्भूत होकर के समस्त प्राणियों के प्रति भगवान ने कृपा की है तो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है यही क्या है वो, शृण्वन्ति शुण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति अभिघ्नसाः। ना ना ना, अवतार का जो अंतिम श्लोक था प्रयोजन का। अच्छा अच्छा। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां, हाँ, वाह वाह। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। ये भगवान का के अवतार का मुख्य प्रयोजन भक्तों के लिए है
जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं एवं विविध दिव्य लीलाएं करते हैं कि लोग उनके तिरोहित होने के बाद भी, उनके अप्रकट होने के बाद भी, उनके इस धराधाम में अदृष्ट होने के बाद भी लोग उन लीलाओं को कह सुन करके भगवान के प्रति अपनी प्रीति, अपना प्रेम को बढ़ा पाए। तो भगवान की कृपा से हम लोग आज तक ऐसा करने में समर्थ हुए हैं। तो भगवान से बारंबार प्रार्थना है, समस्त वैष्णव जनों से प्रार्थना है, हम लोगों की यह जो प्रवृत्ति यह निरंतर बनी रहे। हम लोग भगवान की कथाओं को रोज श्रवण किया करें एवं उनका चिंतन किया करें। और जब भी पंडा बाबू कुछ कहते हैं तो हम लोगों के सामने एक चैलेंज, चुनौती रख देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है आज आपने यह कहा कि ये जो वेदांत, विविध वेदांत के जो मतवाद हैं उनका एक समन्वयात्मक प्रवचन होना चाहिए, उसके ऊपर दृष्टिपात होना चाहिए। तो बहुत बात, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जब मौका आता है या अवसर आता है व्याख्याओं में, हमारे आचार्य लोग जिनकी व्याख्याओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो प्रसंगवशत जो आता है उन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एवं उसका प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं। और सभी वेदांतों का यथायथ बोध हो और वो आत्मसात किया हुआ हो तो वो बात आसानी से कही जा सकती है। अन्यथा प्रसंगतः जो बातें आती हैं उनका हम लोग चर्चा करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा कभी मौका आएगा और ऐसा अवसर होगा तो उन विषयों का भी हम लोग चिंतन कर पाएंगे। एवं आपने सभी भक्तजन जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्षतः परोक्षतः, सभी का आपने धन्यवाद किया। एवं कल की कथाओं का आपने बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया। कल कैसे श्री भीष्मदेव के पास पांडवगण भगवान को लेकर के गए हैं एवं भीष्मदेव कैसे सबका दर्शन करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं एवं सम्मुख में भगवान को प्राप्त करके भगवान को हृदय में बैठा करके भगवान का पूजन कर रहे हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तो भीष्मदेव देश काल विभाग का बहुत बोध है, बहुत उत्तम बोध है, अत्यंत विवेकी हैं। विवेकी का क्या कहना है, तो इतने बड़े राजवंश को यथायथ रूप से जो परिचालित करने वाले हैं, तो देश काल विभाग वित्त तो सुतरांग हैं। तो वे भगवान को हृदय में बैठा करके उनका समर्चन आपने किया और वे वसुत्तम हैं। अर्थात उस महाभारत आदि में यह कथा है कि पूर्व जन्म में भीष्मदेव 8 वसुओं में एक वसु थे। तो वे, उनका नाम था द्यू। 8 वसुओं में से एक वसु हैं द्यू। ये सभी 8 वसु अपनी गृहिणियों के साथ एक बार वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में भ्रमण के लिए गए हुए थे, विनोद के लिए गए थे। तो वहाँ विनोद करते समय आपने सुरभि की जो कन्या है, सुरभि गौ माता की जो कन्या है नंदिनी, उसका दर्शन किया। वसुओं ने दर्शन किया और उनकी जो गृहिणियां थी उन्होंने भी दर्शन किया। तो ये जो द्यू वसु थे, तो उनकी जो गृहिणी थी वो उस नंदिनी को देख करके, यानी सुरभि की कन्या को देख करके उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि ये हमारे यहाँ होना चाहिए, इनको इस आश्रम में ये क्या कर रही हैं, हमारे यहाँ होना चाहिए। तो द्यू की पत्नी ने द्यू वसु से कहा कि आप इसका कुछ करें, हम लोग इसको ले चलें अपने घर में। तब द्यू वसु ने सभी
और भाइयों को, और जो 7 भाई थे सबको इकट्ठा करके उस नंदिनी का, सुरभि कन्या का अपहरण करने का प्रयास किया। तब वशिष्ठ महर्षि के अभिशाप से ये सब लोग, ये अष्टवसु सभी लोग मर्त्य में मरण धर्मा मनुष्य के रूप में इनको जन्म लाभ करने का अभिशाप दे दिया। फिर इनकी माता कौन बने, तो गंगा मैया से प्रार्थना की गई कि आप इनकी माता बने। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं गंगा की ये सब पुत्र थे अष्टवसु। तो पहले तो 7 पुत्रों को जन्म मात्रेण उनको गंगा जी में वो बहा देती थी। लेकिन ये जो अष्टम वसु हैं दिव, क्योंकि इन्होंने उस समय नेतृत्व दिया था वो नंदिनी को अपहरण करने का, इसीलिए इनके ऊपर अभिशाप कुछ ज्यादा था कि आपको बहुत दिनों तक धरती में मर्त्य लोक में रहना पड़ेगा मनुष्य के रूप में। तो वही दिव जो वसु हैं, वसु श्रेष्ठ हैं, वही भीष्मदेव होकर के, दीर्घायु होकर के यह जो कुरुवंश है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं एवं उसकी व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए कहा गया है वसुत्तम। ये तो श्री ऐसे जो भीष्मदेव हैं जो वसुओं में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन करके भगवान को हृदय में बैठा करके उनका अर्चन किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। पहले तो ऋषि मुनियों का अभिनंदन किया, उनका सत्कार किया हृदय से, और भगवान श्री कृष्ण को तत्प्रभावज्ञ, भीष्मदेव समझ रहे थे कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये साक्षात परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं। तत्प्रभावज्ञ अर्थात भगवान के जो प्रभाव हैं, भगवान का जो सामर्थ्य है, भगवान की जो भगवत्ता है, उसको वे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम। तो कृष्ण जो जगदीश्वर हैं वे वहाँ उपविष्ट हुए थे, आसीन विद्यमान थे, वहां पर उपस्थित थे। उनको हृदयस्थम पूजयामास। तो भगवान श्री नंदनंदन बाहर भी विद्यमान थे और उनके हृदय में भी विद्यमान थे, क्योंकि इतने दिन तक वे सरसज्जा में विश्राम करते हुए सब समय भगवान को अपने हृदय में बैठाए हुए थे। ये उनकी स्तुति में हम लोग श्रवण करेंगे, बार बार वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे हृदय में आप निरंतर विराजमान हो। अर्थात भगवान उनके हृदय में पहले से ही विराजमान है, लेकिन भक्त की यह लालसा बनी रहती है। वो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हो। जैसे लोभी व्यक्ति काम ही नारी प्यारी जिमी, श्री गोस्वामी दास जी ने कहा। तो लोभी व्यक्ति, कामी व्यक्ति जैसे अपने लोभ के विषय को बारंबार चाहते हैं और अधिकाधिक चाहते हैं, उसी तरह से भक्त भगवान को अपने हृदय में, अपने पास में, अपने निकट में बारंबार प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। तो यद्यपि उनके हृदय में भगवान विराजमान है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान है, नेत्रों के सामने बाहर भी विराजमान है। लेकिन आपने हृदयस्थ श्री कृष्ण का पूजन किया, क्योंकि उनको मालूम था कि बाहर जो श्री कृष्ण विद्यमान हैं वे तो थोड़ी देर के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय में जो विद्यमान है श्री कृष्ण, वे तो हमारे हृदय में निरंतर रहते हैं, इसलिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाहर विद्यमान है उनका अभ्यर्थना नहीं कर रहे थे, नेत्रों से, अपने मुख के आह्लाद से बहिस्थित भगवान का भी अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन उनकी पूजा का विषय
हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि हृदयादि यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। भक्त लोग यही सोचते हैं, भगवान बाहर कभी दर्शन देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन हृदय में जो भगवान यदि विराजमान हो जाते हैं तो हृदय में आ, उनको रखने से वे अपने को कृतार्थ मानते हैं। हृदिस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। माया के द्वारा जिन्होंने विग्रह को उपात्त किया है, अर्थात कृपा के कारण, प्राणी मात्र के प्रति कृपा के कारण जिन्होंने स्वरूप धारण किया है, इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे जो जगदीश्वर हैं, उनको हृदय में विराजमान करके श्री भीष्मदेव उनका अभ्यर्थना कर रहे हैं। हृदयस्थम संतम पुरतश्च आसीनम पूजयामास। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, हृदय में विद्यमान एवं बाहर विद्यमान दोनों भगवान का आदर करते हुए, सत्कार करते हुए उनकी पूजा करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा, हाँ, माययोपात्त विग्रहम, यहाँ पर चक्रवर्ती पाद कुछ नई बात कहना चाहते हैं शायद। मायया इव उपात्तः गृहीतः विग्रहः युधिष्ठिरेण सार्धम प्रबोध हेतुको विवादो येन तम। माययोपात्त विग्रहम, माया के द्वारा उपात्त है विग्रह जिनके द्वारा। इसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा अलग तरह से व्याख्या करना चाहते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, मायया एव उपात्तः गृहीतः विग्रह। विग्रह शब्द का एक तो अर्थ है कि स्वरूप, भगवान अपने शरीर को धारण करते हैं तो वो विग्रह है भगवान का स्वरूप, भगवान का शरीर। लेकिन यहाँ विग्रह शब्द का अर्थ करते हैं, विग्रह का अर्थ है विवाद। विग्रह शब्द का अर्थ युद्ध भी है, अर्थात विवाद भी है। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का विग्रह शब्द का अर्थ विवाद करते हैं। कैसे? न मायया उपात्तः यानी गृहीतः विग्रहः युधिष्ठिरेण साकं प्रबोध हेतुकः विवादः। युधिष्ठिर महाराज जी के साथ प्रबोध एवं अप्रबोध हेतु का विवाद, अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी के साथ काफी देर से भगवान का यही विवाद चल रहा है, यही युक्ति चल रही है कि आपका कोई अपुण्य, कोई अधर्म, कोई पाप नहीं हुआ है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इसको समझने का समझ नहीं रहे हैं कि हमारा पाप नहीं हुआ। वे तो यही समझ रहे हैं कि महाभारत युद्ध के कारण इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अन्याय हमने जो किया है, तो वो तो कितने भी बड़े बड़े प्रायश्चित हम करें या बड़े बड़े अश्वमेधादि यज्ञ करें, उस यज्ञों से इस पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त होगा। तो प्रबोध एवं अप्रबोध हेतु का यह विवाद, यही है विग्रह। अर्थात भीष्मदेव के प्रबोध के कारण एवं अप्रबोध के कारण, अर्थात भगवान उनको प्रबोध दे रहे हैं, उनको प्रबोध नहीं हो रहा है, इसके चलते जो विवाद है वही है विग्रह। अब वो कैसे हुआ? वो भगवान के माया से, क्योंकि भगवान ही संकल्प कर रहे हैं कि ये हमारे साथ विवाद करें, यानी ये हमारी बातों को न समझें। जब नहीं समझेंगे तभी तो भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करने का मौका, अवसर आएगा। तो इसीलिए भगवान की जो माया है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है यह जो प्रबोध एवं अप्रबोध के कारण विवाद, विग्रह, वही है माययोपात्त विग्रहम। ऐसे भगवान श्री नंदनंदन है, उनको माययोपात्त विग्रह जो भगवान है उनको हृदय में बैठा करके श्री भीष्मदेव उनका समर्चना कर रहे हैं। ये तो चक्रवर्ती पाद का एक विशेष अर्थ है, और जो प्रसिद्ध अर्थ हो सकता है उसके ओर भी इशारा करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यद्वा
मायया कृपया उपनेत्र समीपे आनीतो निज देहो येन सह। ये भी चक्रवर्तीपाद कुछ विशेष ही कह रहे हैं। ऐसे तो सामान्य है कि भगवान अपनी कृपा से अपना स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, माययोपात्त विग्रह, लेकिन चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं मायया यानी कृपया, उपात्त, उपात्त शब्द का अर्थ है उप अर्थात नेत्र समीपे आनीतः। भीष्मदेव को ये भरोसा नहीं था कि भगवान कृपा करके आकर के यहाँ हमको साक्षात दर्शन देंगे, इसका आश्वासन, इसका पूरा भरोसा उनको नहीं था। लेकिन भगवान कृपा करके उनके ऊपर यानी नेत्र के समीप में आनीतः विग्रह निज देह येन, जिस भगवान के द्वारा, जिन श्री कृष्ण के द्वारा अपना स्वरूप श्री भीष्मदेव के नेत्र के समीप में सामने ही उपस्थापित कर दिया गया, वो भी कृपा से। तो ऐसे जो भगवान हैं वे हैं माययोपात्त विग्रहम कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयी रन्धीभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयी रन्धीभूतेन चक्षुषा। भीष्मदेव के बारे में कहा जा रहा है कि अभ्याचष्ट यानी भीष्मदेव ने अभ्याचष्ट दर्शन किया, अवलोकन किया, एक अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ है अभ्याचष्ट की उन्होंने कुछ कहा। तो अभ्याचष्ट भीष्मदेव देवव्रतः यह विनशने अपतत सह अभ्याचष्ट, उन्होंने कुछ कहा। कैसे कहा? न अनुरागाश्रयी अंधीभूतेन चक्षुषा, अर्थात वे दर्शन तो कर रहे हैं कि सभी व्यास आदि महर्षि उपस्थित हैं, उनके अत्यंत प्रिय पांडवगण उपस्थित हैं एवं भगवान उनके आराध्य वे भी उपस्थित हैं। उनको दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन दर्शन के कारण उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है, इतना आह्लाद उत्पन्न होता है, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निर्गत होते हैं। अनुरागाश्रयी, अनुराग यानी प्रेम, भगवान के प्रति एवं पांडव आदि के प्रति जो प्रेम, उस प्रेम के कारण जो अनुराग से अश्र उत्पन्न होता है, अश्र शब्द का अर्थ है अश्रु, उस अश्रु के कारण उनका चक्षु, उनका नेत्र अंधीभूत हो गया है। अर्थात वे अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से इन सब का दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बाष्पाकुलित लोचन, बाष्प से, अश्रु से उनका लोचन, उनका नेत्र, उनका जो दर्शनेन्द्रिय है, चक्षुरेन्द्रिय है, वो आकुलित हो गया है। अनुरागाश्रयी अंधीभूतेन चक्षुषा, अनुराग जनित जो अस्र यानी अश्रु, उसके कारण अंधीभूत यानी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं जिससे नेत्र से, ऐसे नेत्र के साथ उन्होंने अभ्याचष्ट वे दर्शन किए, या ऐसे नेत्र होकर के आपने कुछ कहा पांडवों से। कैसे पांडव? पांडुपुत्रान उपासीनान, तो पांडुपुत्र जो उपासीना अर्थात भीष्मदेव के एकदम करीब में, उनके पास में ही सट करके बैठ गए हैं। बहुत प्रेम है पांडवों को भी भीष्मदेव से। पांडुपुत्रान उपासीनान और प्रश्रय प्रेम संगतान, अर्थात प्रश्रय से और प्रेम से संगत हैं। प्रश्रय शब्द का अर्थ है विनय, भीष्मदेव के प्रति उनके हृदय में बहुत बड़ी भक्ति है और उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए विनय एवं प्रेम, प्रेम भी है और विनय भी है। अर्थात प्रेम एवं विनय से
भरपूर जो पांडवगण विनय से संपन्न, विनय से युक्त जो पांडु के पुत्र, वे उनके करीब बैठ गए हैं, उनके पास में बैठ गए हैं। तो ऐसे पांडवों को लक्ष्य करके, उनको उद्देश्य करके भीष्मदेव कुछ कह रहे हैं। उनके नेत्र सभी के प्रति कृतज्ञता के कारण भर आया है, उनके नेत्र अश्रु जल से परिपूर्ण हो गया है। तो ऐसी अवस्था में आपने पांडवों को देखा एवं पांडवों से कुछ कहा। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रयी रंधी भूते न चक्षुषा। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं उपासीनान, उप आसीन यानी समीपे, समीपे आसीन शब्द का अर्थ है उपविष्ट, अर्थात वहां बैठने की व्यवस्था थी। सभी लोग भीष्मदेव सरसज्जा में पड़े हुए हैं, उनके पास आसन में सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा लोग हैं, ऋषि लोग हैं, भगवान हैं। तो समस्त व्यवस्था है बैठ करके सब भीष्मदेव की कथा का श्रवण करें, उनका दर्शन करें, भीष्मदेव भी भगवान का एवं सभी का दर्शन करें। तो बैठने की पूरी व्यवस्था थी, इसलिए उपासीनान समीपे उपविष्टान और प्रश्रय प्रेम संगतान। प्रश्रय विनय, किसी किसी कभी कभी हम लोग फोटो में ऐसा देखते हैं कि सभी लोग खड़े हैं, तो उससे संदेह होता है कि यहाँ उपासीनान अर्थात उपविष्ट श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। तो बैठने में क्या समस्या है? भीष्मदेव सरसज्जा में विद्यमान है, काफी देर तक वहां बैठ करके उनका सत्संग करना है, उनके उपदेशों का श्रवण करना है और उनका दर्शन करना है, वे भी भगवान का दर्शन करें, इसलिए बैठने की सब व्यवस्था थी। इसलिए उपविष्टान पांडुपुत्रान प्रश्रय प्रेम संगतान। प्रश्रय शब्द का अर्थ है विनय और प्रेम शब्द का अर्थ है स्नेह, अर्थात पांडवों का भीष्मदेव के प्रति विनय भाव अर्थात भक्ति एवं परम स्नेह है, प्रेम है। प्रश्रय प्रेम संगतान ताभ्याम संगतान। संगत शब्द का अर्थ है उपसन्न, उपसन्न का अर्थ है युक्त। प्रश्रय एवं प्रेम से युक्त जो पांडवगण हैं वे वहां विराजमान हैं। सन्नतान इति पाठे ताभ्याम अवनतान, अर्थात ये प्रश्रय प्रेम संगतान, संगतान न कह करके कोई कोई पाठ ऐसा मिलता है प्रश्रय प्रेम सन्नतान, प्रश्रय एवं प्रेम के द्वारा सन्नत, सन्नत नाम ताभ्याम अवनतान। प्रश्रय एवं प्रेम के कारण अपने मस्तक को झुका करके उनके प्रति अपनी भक्ति एवं सम्मान एवं प्रेम पांडवगण प्रदर्शन कर रहे हैं। कुंठा भी है, अर्जुन भी कुंठित हो रहे हैं कि हमारे शस्त्रास्त्र से भीष्मदेव को, हमारे जो पितामह हैं उनको कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन क्षत्रिय छात्र धर्म है और भगवान के निर्देश से यह धर्म युद्ध हुआ है। तो व्यथित होने की बात नहीं है, लेकिन हृदय में कुछ कुंठा है जिसके चलते, जिसके कारण उनके सिर झुके हुए हैं। अगर सन्नत अर्थ शब्द का यहाँ पाठ हो तो सन्नतान यानी पाठ ताभ्याम अवनतान अभ्याचष्ट, अभ्यभासत। अभ्याचष्ट शब्द का अर्थ है अभ्यभासत अर्थात अभासत अर्थात बभास, बभाषे। अनुरागाश्रयी स्नेहाश्रुभिः अंधीभूतेन चक्षुषा उपलक्षितः ददर्श इति वा। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद यह भी कह रहे हैं अभ्याचष्ट शब्द का अर्थ अभ्यभासत, अभासत, बभासे यह भी अर्थ हो सकता है, और ददर्श यह भी अर्थ है, और चक्षुषा यह तृतीया जो है वह उपलक्षित यानी क्या है वो इत्थम भूत लक्षण शायद है कि तो अंधीभूतेन चक्षुषा अर्थात अंधीभूत चक्षु रूपलक्षित जो भीष्मदेव हैं, अर्थात यह जो भीष्मदेव की अभी जो स्थिति है कि उनके नेत्र
प्रेमाश्रु से सिक्त हो गए हैं और अश्रु से भर गए हैं, ये उनका लक्षण नहीं है, ये उपलक्षण है। सामयिक रूप से वे इस अवस्था में विद्यमान हैं। अनुरागाश्रयी स्नेहाश्रु ही अंधीभूतेन चक्षुषा उपलक्षितः ददर्श इति वा, अर्थात अभ्यभासत ददर्श इति वा। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं अभ्याचष्ट अभ्यभासत, और कुछ नहीं कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद समझ रहे हैं कि और यहाँ पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है, क्योंकि उस व्याख्या का अनुसरण करते हैं, तो उनको लगा बहुत सुंदर व्याख्या है, इसमें और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयी रंधीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्र धर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्र धर्माच्युताश्रयाः। अर्थात यहाँ से भीष्मदेव अगले 11 श्लोक 11 पद्यों में भीष्मदेव अपना उनके हृदय में जो बात है, उनको जो कुंठा है या महाभारत युद्ध में जो जो घटना हुई है, उनके हृदय का जो भाव है वो प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ से अगले 11 पद्यों में। अहो कष्टम अहो न्याय्यम, पहले वे सोचना कर रहे हैं ये बहुत कष्ट की बात है, ये बहुत अन्याय हुआ, अर्थात पांडवों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा अनुचित हुआ, बहुत बड़ा अविचार हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तो दुर्योधन के साथ अंत तक रहे, लेकिन आपके प्रति जो अविचार हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके लिए मैं अत्यंत आहत हूँ। अहो कष्टम अहो न्याय्यम, क्या है कष्ट, क्या अन्याय है, क्या अन्याय्य है, यानी क्या अनुचित है, क्या अविचार हुआ ना। यद्यूयम धर्मनंदनाः, आप लोग धर्मनंदन हैं। यहाँ धर्मनंदन तो अकेले युधिष्ठिर महाराज जी हैं, लेकिन यहाँ बहुवचन का जो प्रयोग किया गया है उसको व्याख्याकारों ने परिष्कार किया। आप लोग सभी धर्मनंदन है। एक तो बात है कि युधिष्ठिर महाराज जी की मुख्यता होने के कारण तो सभी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, या युधिष्ठिर महाराज जी उनमें प्रधान हैं, इसलिए बहुत्वम प्रधानापेक्षम, प्रधान को लक्ष्य करके, युधिष्ठिर महाराज जी को लक्ष्य करके जो बात कही जा रही है, जैसे इससे पहले भी कहीं आया है, तो ये सभी के लिए ऐसा कह दिया गया। या छत्रिणो यान्ति इतिवत, छत्र कुछ लोग जाते हैं, उस एक झुंड जाता है, एक गोष्ठी, एक समुदाय जाता है, उसमें कुछ लोग छत्र धारण किए हुए हैं और बहुत लोग छत्र धारण नहीं किए हुए हैं, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि छत्रिणः जानती। किसी गांव में 2-4 डकायत रहते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो डकायतों का गांव है, तो ये इसको कहते हैं छत्री न्याय। अर्थात छत्री, यद्यपि सभी छत्री नहीं है, कुछ लोग ही छत्री हैं, लेकिन सभी को छत्री शब्द से कहा जाता है। पूरे गांव को डकायत का गांव कह दिया जाता है 2-4 डकायत होने के कारण। तो इसलिए तो धर्मराज यद्यपि युधिष्ठिर महाराज जी भी हैं, लेकिन सभी को धर्मनंदनाः ऐसे कह दिया गया है। लेकिन इससे संतोष नहीं हुआ, ये बंशीधर शर्मा जी का काम है, उनको इससे भी संतोष नहीं हुआ, तो आगे कहते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। अथवा धर्माचरणम चरणेन नंदयति समर्थयति इति वा, धर्माचरणेन नंदयति, धर्मम आचरणेन नंदयति, अर्थात धर्माचरण के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपने सद्व्यवहार के द्वारा, शास्त्रोचित व्यवहार के द्वारा जो लोग संसार को आनंदित करते हैं, संसार को आह्लादित करते हैं,
वे धर्म नंदन, धर्मेण नंदयति यानी सुखयति। तो ऐसा अर्थ करके ये सभी पांडवों को ये धर्म नंदना इस तरह की शाब्दिक व्युत्पत्ति दे करके कहना चाहते हैं, क्योंकि पांडवों के चरित्र से, पांडवों के व्यवहार से समस्त लोग आनंदित होते हैं। तो ऐसी व्याख्या करके धर्म नंदना, इसमें बहुवचन का उपादन कर रहे हैं। अहो कष्टम अहो न्याय्यम यदयूयम धर्म नंदना। आप धर्मनंदन होने पर, अर्थात आप लोग इतने धार्मिक होने पर भी, अर्थात आपने अपनी धार्मिकता के कारण विश्व विदित होने के बावजूद आप लोगों को जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया, लेकिन आपको अपने जीवन में आज तक जितना कष्ट मिला, जितनी परेशानी से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वह उचित नहीं था। ये आप लोगों का योग्य, आप लोगों के लिए तो ये योग्य नहीं था। आप लोगों को इतना कष्ट नहीं मिलना चाहिए था, इतने कष्ट से आपका जीवन का निर्वाह नहीं होना चाहिए था। जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम, क्यों? पहले तो आप लोग धर्मनंदन है, मतलब धर्माचरण के द्वारा, धार्मिक व्यवहार के द्वारा समस्त लोगों को आप आनंदित कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आप लोग विप्र धर्माच्युताश्रय, अर्थात विप्र लोग आपके आश्रय हैं, अर्थात आपका समस्त व्यवहार ब्राह्मणों के अवलंबन से, धर्म के अवलंबन से एवं अच्युत के अवलंबन से, अर्थात आप लोग सभी पांडव लोग, कुंती महारानी, आप लोग ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर करते हैं किसी भी कर्म के लिए, अपने व्यवहार के लिए, और धर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। धर्मशास्त्र को देख करके ही आप लोग व्यवहार करते हैं, कोई अधार्मिक कार्य आप करते नहीं हैं। और साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र ही आपके पास हैं। तो विप्र, धर्म एवं अच्युत, ये तीनों आपके आश्रय हैं। तो ऐसे आश्रय जिसको मिला हुआ हो, जो विप्र के आश्रय में जीता हो, जो धर्म के आश्रय में जीता हो, जो साक्षात भगवान के आश्रय में जीता हो, उसको कष्ट हो, उसको क्लिष्ट हो, उसका जीवन इतना दुखपूर्ण हो, इतना व्यस्त हो, यह कहाँ तक उचित है। इसलिए बहुत अन्याय हुआ, बहुत अनुचित हुआ। अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नारथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। श्री बंशीधर शर्मा जी इस पर कहते हैं कि अच्छी बात कहते हैं, विप्रादिषु एकोपि सुख जीवनाय अलम। कहते हैं, जैसे हम लोग एक श्लोक बाल्यकाल में श्रवण किए थे, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थात यौवन, धन संपत्ति का मतलब है धन का प्राचुर्य, प्रभुत्व यानी बहुत बड़ा अधिकार मिल जाना, और मूर्ख होना। यह प्रत्येक जो गुण है या दोष है, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, इसमें से कोई एक भी गुण अगर किसमें हो तो उसकी दुर्गति होने में पर्याप्त है। किसी भी व्यक्ति के दुर्गति के लिए यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, इस चार में से कोई एक भी गुण या दुर्गुण, सुगुण जो भी हो, वो पर्याप्त है। अकिमु यत्र चतुष्टयम, जिस व्यक्ति में चारों हो, उसकी दुर्गति होने में कौन सा संदेह है। तो उसी तरह की बात यहाँ श्री बंशीधर शर्मा जी कह रहे हैं, विप्रादिषु एकोपि सुख जीवनाय अलम। ये विप्र, धर्म, अच्युत तीनों का आश्रय पांडव लेते थे। इसमें से किसी एक का भी आश्रय ले लिया जाए तो उस जीव की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण को अवलंबन करके अपना जीवन व्यतीत करता हो, ब्राह्मण के निर्देश से, ब्राह्मण के गाइडेंस में कोई अगर अपना जीवन को संचालित करता हो, तो उसकी दुर्गति होनी नहीं चाहिए। और कोई
धर्म को अवलंबन करके, धर्म को ही अपना आश्रय मान करके अपना जीवन यापन करता हो, उसकी भी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। और भगवान के आश्रय में कोई रहता हो तो उसकी दुर्गति तो होती ही नहीं है। लेकिन ये तीनों का अवलंबन करने के बाद भी आप लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए 2 बार कह रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो अहो अर्थात अपनी व्यथा को अहो शब्द 2 बार कह करके श्री भीष्मदेव प्रकाश कर रहे हैं। श्री बंशीधर शर्मा जी कह रहे हैं, विप्राणाम सेवनम लोके विपद ध्वांत सहस्रपात। अर्थात विप्रों का सेवन, इस संसार में जो विज्ञ सच्चरित ब्राह्मण हो उनका सेवन अगर किया जाए तो विपद ध्वांत सहस्रपात, अर्थात अंधकार सदृश जो विपद है, अर्थात जो प्रतिकूल जो स्थिति है, ऐसे 1000 प्रतिकूल स्थिति भी आए तो उससे भी मनुष्य उबर जाता है, उसका भी उल्लंघन कर लेता है, उसको भी तर जाता है। ये विप्रों के महात्म्य की बात बताई गई है। और कहा गया, धर्मो रक्षति कांतारे यत्र कोपि न रक्षिता। अर्थात ऐसी अवस्था जब सहायक और कोई भी न हो, केवल धर्म अगर हो तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का पतन नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है, केवल धर्म मात्र का आश्रय करने से। इसलिए कहा है ना, धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य हेतु रस्य त्वनित्य। न जातु कामात् न भयात् न लोभात् धर्मम जय्यात् जीवितस्यापि हेतु हो। धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य हेतु रस्य त्वनित्य। अर्थात कभी भी धर्म मार्ग से हटना नहीं चाहिए, धर्म मार्ग से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था आती है कि जो लोग धर्मावलंबी होते हैं, जो सत्य पथ में अपना जीवन परिचालित करते हैं, वे बहुत दिनों तक, पूरे सारा जीवन में उनको थोड़ी बहुत समस्या भले आती हो लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होती। और जो लोग धर्म को दरकिनारे करके, धर्म का परित्याग करके अधर्म मार्ग से अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो उनकी दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति कांतारे यत्र कोपि न रक्षिता। जहां पर कोई भी रक्षक नहीं होता है वहां धर्म रक्षा करता है। और अच्युत कैसे रक्षा करते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। अर्थात जैसे हम कितने भी बड़े भयंकर स्वप्न देखते हो, बाघ खा रहा है, हाथी कुचल दे रहा है, या कहीं पर्वत से गिर जाते हैं, कितना भी दुस्वप्न हो, लेकिन अगर निद्रा भंग हो जाए तो समस्त दुस्वप्न तुरंत नष्ट हो जाता है, भाग जाता है, उसकी कोई स्थिति नहीं रहती। उसी तरह से हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण अगर बना रहे तो समस्त विपत दूर भाग जाते हैं। जैसे जग जाने के बाद, निद्रा के टूटने के बाद समस्त भयंकर स्वप्न भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं रहती है। उसी तरह से सर्व विपद विमोक्षणम हरिस्मृति। तो कहने का मतलब है, विप्र के आश्रय करने से भी समस्त दुर्गति से मनुष्य बच जाता है, धर्म के आश्रय करने से भी ऐसा ही होता है, हरि के आश्रय करने से ऐसा होता ही है। तो फिर भी आप लोग तो विप्र, धर्म एवं हरि सभी के आश्रय में थे, लेकिन आप लोगों को जितना इस संसार में कष्ट मिला, पांडवों को जितना कष्ट मिला, तो वो कैसे मिला, क्यों मिला, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या और ये जो भी हुआ हमको समझ में आए ना आए, लेकिन ये बहुत ही अन्याय हुआ। अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयम धर्म नंदना।
जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं अभिभाषणम आह, अर्थात वो जो अभ्याचष्ट पहले श्लोक में था, अभ्याचष्ट अर्थात अभ्यभाषत, तो उस अभिभाषण क्या है भीष्मदेव का उसको बता रहे हैं। अहो इति एकादशभिः, हे धर्मनंदनाः क्लिष्टम यथा भवति एवं जीवितुम नार्हथ, अर्थात आप लोगों के जीवन में तो कष्ट होना नहीं चाहिए। यूयमिति यत एतत् अहो कष्टम जुगुप्सितम अहो अन्यायम च एतत्, यह अत्यंत कष्ट यानी जुगुप्सित है, अर्थात यह अत्यंत घटिया बात है, यह अत्यंत निंदित बात है कि आप लोगों को भी कष्ट हो, और यह अत्यंत अन्याय भी है। यतः यूयम विप्रो धर्मो अच्युतश्च आश्रय येषाम, आप तो विप्राश्रय में, धर्माश्रय में, भगवत आश्रय में अपना समस्त जीवन अति व्यतीत कर रहे थे, आपको क्यों कष्ट हुआ, आपको क्यों इतनी तकलीफ हुई, उसका बोध मुझे भी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अन्याय हुआ। यहीं से श्री भीष्मदेव अपना प्रवचन का शुभारंभ कर रहे हैं अपनी ग्लानि के साथ, एवं पांडवों के प्रति उनका जो हृदय में अपार स्नेह है उसकी अभिव्यक्ति के साथ ही भीष्मदेव अपना वक्तव्य शुरू कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अहो कष्टमिति तैहि तत्र यदिति तद एतद यदिति तद एतद यद भवद विचारितम इत्यर्थः। ना मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। अहो कष्टम अहो न्याज्यमिति, यहाँ पर एक पाठ भेद है, जो ग्रंथ लेकर के बैठे हों वो अपना करेक्शन कर लें, क्योंकि थोड़ा सा चाहिए यहाँ। अहो कष्टम अहो न्याय्यमिति चक्रवर्ती पाद का व्याख्या है। राजन्वती देशे एव अन्याय कष्टे खलु न संभवतः, अर्थात जो राजनवान देश है, तो पाणिनि महर्षि का सूत्र है राजनवान सौराज्य, राजनवती सौराज्य या राजनवान सौराज्य, ऐसा सूत्र है। अर्थात जो देश राजनवान हो, अर्थात जिसमें सौराज्य हो, यानी राजा अच्छे शासक हो, अच्छा प्रशासन चलता हो, तो राजनवती देशे एव अन्याय कष्टे खलु न संभवतः, राजा अगर अच्छा मिल जाए तो उस देश में प्रजा को ये सब नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, उसके प्रति अन्याय नहीं होता है। किंतु किम अत्र अर्थे सर्व विश्व स्थिति कर्तरी विष्णु एव अन्यायः समभूत इति भावः, राजा अगर अच्छा हो तो उस देश में जब प्रजा को क्लेश नहीं होता है, और साक्षात जो राजाधिराज हो, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जिनके साथ विद्यमान हो, उनको इतना कष्ट हो, ये कैसे संभव हुआ। कर्तरि विष्णु एव अन्यायः समभूत इति भावः क्लिष्टम यथा स्यात् तथा यूयम जीवितुम नार्हथ, अर्थात आपको कष्ट में जीने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात आप लोगों को कष्ट के साथ कालातिपात करने का कोई कारण नहीं था। अन्य तथा जीवंती चेत जीवंतु इति भाव, अर्थात श्री भीष्मदेव का कहना है आप कोई सामान्य नहीं है, आप समस्त प्राणियों से विलक्षण हैं, समस्त मनुष्यों से विलक्षण हैं, क्योंकि विप्र धर्माश्रय, विप्र धर्म एवं अच्युताश्रय हैं, इसलिए दूसरे लोग कष्ट में भले जिए, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इस कथा में उपस्थित समस्त वैष्णवजनों भक्तजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम। गणपति महाराज की जय।